Dear friends, further in the topic of chapter number 13, we go on for obtaining the exponential of a radioactive decay. Now, radioactive decay, we had seen that when one radioactive nuclei on emission of alpha, beta or gamma radiation converts into some other nuclei, that phenomenon is called radioactive disintegration or radioactive decay. Now, regarding the number of nuclei left undisintegrated, there is a law, and that is what we are going to obtain. We are beginning with, we know that as usual dN by dt is equal to minus lambda n. This is the formula we had taken for rate of disintegration in the previous lecture. Now from this we have to obtain the exponential law. तो उसके लिए steps देख लेते हैं. Bringing n on the left side and dt on the right side. Therefore dN by n will be equal to minus lambda dt. Now integrating both the sides. Integrating both sides. Integration of 1 by n dn is equal to minus lambda. Lambda being constant बाहर आ गया. Integration dt. Now time का लेते हैं 0 to t limits. Lower limit, upper limit, lower limit 0, upper limit t. तो यहाँ पे at time t equal to 0, number of nuclei was n 0, and at time t number of nuclei is n, undisintegrated nuclei is n. Okay. अब यहाँ पे 1 by n का इंटीग्रेशन आता है log n from n0 to n is equal to minus lambda t का इंटीग्रेशन d nothing is there, so integration t from 0 to t. Okay. Now upper limit minus lower limit, log n minus log of n0 is equal to minus lambda t minus 0. Now difference of log means log of ratio, so this will be log of n by n0 is equal to minus lambda t. Now using definition of logarithm, this is a nature law. So by definition of logarithm, this will come as n by n0 is equal to, now nature logarithm में इससे base में e होता है, so that e comes here, e equal to minus lambda t. Here e is charge on electron, नहीं, it is not the fundamental charge e, it is base of nature logarithm का base, and that's also called as Napier's constant, and the value of e is 2.718. It's a Napier's constant or base of nature logarithm. Okay, so from this we can say n is equal to n0 e raised to minus lambda t. That is the formula for number of nuclei left undisintegrated. खास ध्यान रखें n क्या है? N is the number of nuclei left undisintegrated. So therefore number of nuclei disintegrated, number of disintegrated nuclei कितना होगा? कितने disintegrate हो गए? इन्हें convert हो गए. We'll call it as n disintegrated, and that will be equal to n0 minus n. ओरिजिनल ये जितने थे उसमें से कितने उड़ गए? ये हो गया नंबर ऑफ अनडिसिंटेग्रेटेड न्यूक्लियई, बराबर है. एंड अनडिसिंटेग्रेटेड कितने ये है, तो डिसिंटेग्रेटेड कितने हुए? n0 माइनस n, ओरिजिनल माइनस दिस वैल्यू. ओके, ये न्यूमेरिकल्स के लिए खास काम आएगा, इसलिए यहाँ नोट कर रहा हूँ. बाकी हमें थियरी में नहीं लिखना है. अगर क्वेश्चन पूछा ऑब्टेन डेरिवेशन, ऑब्टेन एक्सपोनेंशियल लॉ, यू नीड नॉट राइट दिस. यहाँ पर आके इसका इसमें से कमेंट करते हैं क्या? एज टाइम पासेस, यानी कि टी इंक्रीजेस, दैट मीन्स टी इंक्रीजेस, टी बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा, पावर का वैल्यू बढ़ेगा, पर नेगेटिव साइन इज दिस होल वैल्यू विल डिक्रीज, ई रेज टू पावर, बराबर है. अगर टी एज टाइम पासेस टी इंक्रीजेस, देयरफॉर ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी, दैट इज एक्सपोनेंशियल टर्म विल गो ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव पावर, तो एन विल डिक्रीज, एन डिक्रीजेस, एंड वो भी कैसा? एक्सपोनेंशियली. क्यों? क्योंकि वेरिएबल एक्सपोनेंट में, तो यहाँ पे बोलेंगे एन डिक्रीज एक्सपोनेंशियल विद टाइम. thus we can say therefore n decreases exponentially with time. Hence this formula is called exponential law for radioactive disintegration or decay. Okay, n decrease exponentially with time. हाँ, ऐसा ही हमने ये ऐसी कुछ n something decrease exponentially with time हमने आगे भी देखा हुआ है. We already studied this something decreasing exponentially with time. If you can recall, that was in standard 11 chapter number 14 oscillations में damped oscillation का amplitude was decreasing exponentially with time. वहाँ पे कुछ ऐसा था damped oscillation में amplitude at time t is equal to a0 e raised to minus bt by 2m. तो यहाँ b by 2m की जगह लैम्बडा है, the constant b by 2m की जगह यहाँ पे लैम्बडा है, बाकी exactly the same है.
तो वहां पे भी एम्पलीट्यूड वाज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल विद टाइम, हियर आल्सो एम्पलीट्यूड डिक्रीज एक्सपोनेंशियल विद टाइम. These are the two similar formula, similar phenomenon occurring in two different fields, एक mechanics and दूसरा radioactivity. Okay, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ ऑफ n वर्सेस टाइम, ग्राफ ऑफ n वर्सेस टाइम. तो on y axis we take n, on x axis we take time. बराबर है, ये जीरो हो गया. Now initially time t equals 0 पे number of nuclei is n0 and then decreasing exponential time we show it by this way. टच होगा कहाँ पे? इंफिनिटी पे, क्योंकि t इंफिनिटी होगा तभी n इक्वल टू 0 आएगा. t इज इंफिनिटी एट दैट टाइम ओनली n इज 0. यानी ग्राफ टच होगा इंफिनिटी पे, इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ पैरेलल छोड़ देना है इसे. दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडिएक्टर. डिसइंटीग्रेशन बताता है, इसलिए इस ग्राफ को बोलते हैं हम लोग डिसइंटीग्रेशन कर्व. डिसइंटीग्रेशन कर्व या फिर इसको बोलते हैं डीके कर्व. बराबर. एंड इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा? स्लोप ऑफ द ग्राफ इज dn by dt. तो हम जानते हैं dy by dx बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. यहाँ पे dn by dt हो जाएगा एंड दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और एक्टिविटी ऑफ द रेडिएक्टिव सब्सटेंस. तो स्लोप गिव्स एक्टिविटी एंड वी कैन क्लियरली सी दैट इट्स अ कर्व्ड ग्राफ, सो स्लोप विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग, मतलब अलग अलग टाइम पे स्लोप अलग अलग, मतलब एक्टिविटी भी अलग अलग. ओके, सो ये हो गया रिगार्डिंग ग्राफ ऑफ n वर्सेस t. हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इट कैन बी अ क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू लाइक दिस आल्सो. प्लॉट द ग्राफ ऑफ, हमें ऑब्टेन करना है ग्राफ ऑफ log n वर्सेस t. log n वर्सेस t का ग्राफ चाहिए, तो उस केस में हम लोग फॉर्मूला ये यूज करेंगे. ये फॉर्मूला क्या बताता है? ग्राफ ऑफ log n वर्सेस t चाहिए ना, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिया हमने. तो दिस फॉर्मूला विल बी शो log n इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी प्लस log n 0. ये फॉर्मूला यहाँ से मिला हमको. log n इज इक्वल टू, ये यहाँ से हमको मिला log n इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी प्लस n 0. अब इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c के साथ. वी कैन क्लियरली सी दैट log n वर्सेस t ग्राफ विल बी a स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू माइनस लैम्बडा. यानी ग्राफ कैसा आएगा? log n वर्सेस टाइम का ग्राफ यूं आएगा. स्लोप नेगेटिव है, स्लोप विल बी इक्वल टू लैम्बडा, नेगेटिव लैम्बडा, क्योंकि नेगेटिव स्लोप आएगा यहाँ पे. ओके, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसमें, इसके साथ कनेक्टेड. ये n है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड एट टाइम t. ये कितने बचे एट टाइम t, उसका फॉर्मूला हो गया. Similarly, you can have another formula जो हमें डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है. m is equal to m0 e raised to minus lambda t, where m is the mass of radioactive substance left undisintegrated. Undisintegrated mass, ये initial mass. यहाँ पे initial number of nuclei है ना, वैसे ये initial mass of radioactive substance at time t कितना mass left undisintegrated. फिर से disintegrated mass से m0 minus m कर दो. Similarly, एक और फॉर्मूला आता है I equal to I0 e raised to minus lambda t, and that is the formula for I stands for activity. So activity of a radioactive substance, activity means dN by dt. I and dN by dt both are same. So activity of a radioactive substance at time t. Initial activity क्या है? वो I0. Initial activity is I0. Activity at time t is this. We know that activity also decreases. यहाँ पे slope क्या activity बताता है ना? Slope is showing activity. तो activity is decreasing with time. तो वही सेम यहाँ पे भी दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग विद टाइम. ये दो फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, थियरी में उन्हें नोट नहीं करना है, यहाँ पे बताना नहीं, यू नीड नॉट शो दैम. ओके, दैट दे विल बी हेल्पफुल फॉर न्यूमेरिकल्स. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मास लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड एंड तीसरा एक्टिविटी एट टाइम टी. ये तीन फॉर्मूला इसमें आ जाते हैं हमारे. बराबर. तो ये हो गया डिस्कशन हो एक्सपोनेंशियल लॉ फॉर रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन. ये उसके साथ साथ में ग्राफ की बात हो गई. एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ग्राफ log n वर्सेस t का अगर पूछा हो तो, वैसे तो dn by dt वर्सेस n का ग्राफ आएगा तो भी स्ट्रेट लाइन विद स्लोप माइनस लैम्बडा आएगा. dn by dt एक्टिविटी का ग्राफ विद n विल बी अ स्ट्रेट लाइन हैविंग नेगेटिव लैम्बडा. ओके, क्लियर. तो ये हो गया रिगार्डिंग एक्सपोनेंशियल लॉ फॉर रेडियोएक्टिव डीके. जस्ट गो थ्रू दैट. तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के बारे में. तो पहले देखते हैं हाफ लाइफ क्या है. व्हाट डज इट मीन बाय हाफ लाइफ? डेफिनेशन. तो इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच
द नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, यानी इनिशियल जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर थे उसके आधे कितने टाइम में बच जाते हैं, दैट्स कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। बराबर है, यानी कि बाय डेफिनेशन n is equal to n0 by 2, number of nuclei left undiscriminated becomes half of the initial value, that time is called half lifetime, that time is called half lifetime। मतलब क्या हो गया, कितने बच जाते हैं, यानी आधे बचते तो आधे उड़ गए बोलते हैं। the other way around can also be called as the time during which half of them disintegrates। बराबर है, the time during which half of them disintegrates, पर हम लोग क्या याद रखेंगे, कितने undisintegrated, half of them, the time during which the number of nuclei left undisintegrated becomes half of the initial value। चलो अब इसका फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं। लेट्स ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ टाइम। तो उसके लिए स्टार्ट वहीं से ही होगा। वी नो दैट, हमको सब कुछ पहले से ही मालूम, क्या n इज इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्बडा t। ओके, नाउ यूजिंग n इक्वल टू n0 by 2 एट टाइम t इक्वल टू टाउ हाफ, हाफ लाइफ टाइम पे आधे हो गए तो रख देते हैं यहाँ पे, therefore n0 by 2 is equal to n0 e raised to minus lambda tau half। ओके, n0 कैंसिल हो गया तो 1 by 2 is equal to e raised to minus lambda tau half, तो therefore 2 is equal to e raised to lambda tau, दोनों साइड पे इनवर्स कर दिया। now using definition of logarithm, lambda tau half will be equal to natural log of 2, या फिर बोल सकते हैं log of 2 base e, या वही हो गया नेचर लॉग ऑफ 2 ही हो गया। बराबर है, अब नेचर लॉग ऑफ 2 कैसे ढूंढेंगे, तो नेचर लॉग ऑफ 2 इज नथिंग बट लॉग ऑफ 2 बेस ई, इसको कन्वर्ट करना है बेस 10 में, तो log ऑफ 2 बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो हमने सिखाया था 2.303, हमने सीखा ये 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो बेस ई से बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो by multiplying by a number, on multiplying by a number 2.303 base e converts into base 10। what's the need, we don't use logarithms with base e, we use logarithm with base 10। डेसिमल बेस हमारा लॉगरिथम सिस्टम है, इसे 10 के पावर में चलता है, तो 10 के बेस पर चलेगा तो ये वही मिल सकता है हमको, दूसरा तो लॉग टेबल हमारे पास है नहीं। तो टू कन्वर्ट फ्रॉम बेस टू ई, बेस ई टू बेस 10 वी यूज दिस नंबर 2.303। ओके, एंड यहाँ पे हो जाएगा दिस विल बी 2.303 इंटू 2 का लॉग 0.3010 आएगा, तो दिस विल बी 0.6990, this will be 0.6990। sorry, it will be 0.693। ओके, तो नेचर लॉग ऑफ 2 इज 0.693, ये याद रखना हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, यू कैन राइट दिस डायरेक्टली एज 0.693। तो फिर हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, therefore हाफ लाइफ टाइम विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्बडा, तो ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया 0.693 अपॉन लैम्बडा। ओके, सो ड्यूरिंग एवरी हाफ लाइफ टाइम द नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट disintegrated becomes half of the previous value। during every half lifetime the number of nuclei left undisintegrated becomes 0, become half of the initial value, initial value का हाफ हो जाता है। बराबर, ये आ गया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पे अपना काम तो खत्म हो गया। पर चलो इसे समझ लेते हैं, इसके ऊपर से हमें कुछ और लेना है जो न्यूमेरिकल्स के लिए खासियत काम आएगा, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। क्या, तो देखो टाइम का काउंटर लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड का काउंटर लेते हैं। टाइम 0, नंबर ऑफ न्यूक्लियर अनडिसइंटीग्रेटेड n0। फिर टाइम लेते हैं टाउ हाफ, टाउ हाफ में तो आधे हो जाएंगे प्रीवियस के, तो n0 by 2 आगे से आधे हो गए। फिर एक और टाउ हाफ लिया, यानी 2 टाइम टाउ हाफ, स्टार्टिंग में इनिशियल से गिनो, तो वी टेक वन मोर इंटरवल ऑफ टाउ हाफ, दैट मींस 2 टाउ हाफ हो गया। तो अब यहाँ पे अगेन इंटरवल ऑफ टाउ हाफ है, आधे हो गए, n0 by 2 का आधा n0 by 4, 0 से टाउ हाफ आधा हुआ, टाउ हाफ से टाउ हाफ अनदर 2 टाउ हाफ, टाउ हाफ से 2 टाउ हाफ यानी अनदर टाउ हाफ इंटरवल, तो आधे आगे का आधा, एंड फिर एक और इंटरवल ले लो 3 टाइम्स टाउ हाफ, 3 टाइम्स टाउ हाफ, तो हो जाएगा n0 आगे का भी, इधर से टाउ हाफ हो ना इंटरवल, तो आधा आगे का 9 by 8 एंड सो वन n टाइम्स टाउ हाफ। उसको देखते हैं हम लोग अभी। यहां पे देखो तो क्या हो रहा है, ये 0 पे n0 है, विच कैन बी रिटन एज n0 by 2 raised to 0।
This can be written as n0 by 2 raised to 1. This can be written as n0 by 2 raised to 2, n0 by 2 raised to 3. अब देखो कनेक्ट करते हैं इसको इसके साथ. 0 मीन्स देखो पावर ये 0 1 है, n 2 by 2 है तो पावर 2, 3 है तो पावर 3. यानी इसको अगर जनरलाइज करें तो t इक्वल n टाइम्स टाउ ऑफ, अगर क्वेश्चन n है तो यहाँ क्या बनेगा n0 by 2 raised to n. Okay, n0 by 2. What you will get here is n0 by 2 raised to n. यानी कि when t equal to n times tau half, thus t equal to n times tau half, the number of nuclei left unconsidered becomes n0 by 2 raised to n. न्यूमेरिकल्स में खास काम आएगा. यानी हाफ लाइफ टाइम का कितना मल्टीपल है n0 by 2 raised to n is the remaining nuclei. और जिसमें कितने बचे हो, डायरेक्ट ये शॉर्टकट हो गया, ये सब नहीं करना पड़ा, उसके लिए शॉर्टकट हो गया. एमसीक्यू में काम आएगा ज्यादा. when you work out the problems in section B, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में, तो you have to solve the complete sum. Solve it like this. वैल्यूज डाल के सॉल्व करना कंपलसरी होता है, पर अगर एमसीक्यू में तो आप लाइक यू कैन डू डायरेक्टली. अगर बोले हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस 2 सेकंड 2 मिनट, चलो हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस 2 मिनट, तो 8 मिनट के बाद कितना बचेगा. हाफ लाइफ इज 2 मिनट, तो 8 मिनट यानी कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स 2, तो ये n0 by 2 raised to 4 हो जाएगा. आपको बोला है t इक्वल टू 8 मिनट, टाउ ऑफ आपको दिया हुआ है 2 मिनट, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स टाउ ऑफ, यानी n इक्वल टू 4 आया, तो n विल बी n0 by 2 raised to 4, दैट इज n0 by 16. n0 by 16 कितना होता है 0.625. दिस विल बी 0.0625, यानी क्या हो जाएगा 6.25% बचा. तो 8 मिनट, अगर हाफ लाइफ टाइम 2 मिनट है तो 8 मिनट बाद कितना बचेगा 6.25% बचेगा, बाकी 93.75 डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. ये शॉर्टकट इसको यूज करते हैं. ओके, हाफ लाइफ 2 मिनट है तो 8 मिनट्स बाद, 8 मिनट्स यानी कितना 4 टाइम्स हाफ लाइफ, टाइम इक्वल टू 4 हुआ. टाइम कितना होगा n0 by 2 raised to n, n0 by 2 raised to 4, 2 raised to 4 is 16, 16th पार्ट करो n0 का, तो दैट बी 0.0625 n0, and this is 6.25% of n0. n0 का 6.25% बचेगा. ओके, ये हो गया हाफ लाइफ के बारे में. देख लीजिए. चलो next we go for average lifetime of radioactive substance. Now before going to what it means, उसका डेफिनेशन लेने के बजाय पहले समझते हैं एवरेज क्यों, वर्ड ये एवरेज क्यों लाइफ टाइम के साथ में. लाइफ टाइम मीन्स जब वो पूरा खत्म हो जाए तब. वी हैड सीन फ्रॉम द ग्राफ ऑफ डीके काउ का ग्राफ देखा था एन वर्सेस टाइम का, बराबर है. वो कुछ ऐसा था कि यहाँ से शुरू हुआ n0 से, डिक्रीज होता गया नंबर, एंड डिक्रीज होके ग्राफ पैरेलल हो गया टू द एक्सेस y एक्सेस, सॉरी एक्स एक्सेस पैरेलल हो गया. मतलब टच कब होगा, टच होगा तब n इक्वल टू 0 होगा ना, यानी कि सारे डिसइंटीग्रेट होगा. वंस ऑल डिसइंटीग्रेट्स दैट मींस द सब्सटेंस इज फिनिश्ड. सपोज यूरेनियम का थोरियम में कन्वर्जन हुआ, यूरेनियम कन्वर्जन टू थोरियम, बराबर है. तो यूरेनियम के न्यूक्लियस कम होते जाएंगे, विद पासिंग ऑफ टाइम नंबर ऑफ यूरेनियम विल डिक्रीज एंड थोरियम विल इंक्रीज. अब यूरेनियम डिक्रीज होते होते अगर 0 हो गए, दैट मींस यूरेनियम खत्म हो गया, थोरियम आ गया, यानी यूरेनियम इज डेड. दैट मींस यूरेनियम इज डेड नाउ, यानी उसका लाइफ खत्म हो गया. पर कब होता है ऐसा, टच ही ग्राफ के पैरेलल हो गया, कब टच होता है इन्फिनिटी पे, तो लाइफ टाइम विल बी इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी लाइफ तो थोड़ा ऑड लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, रादर देन टेकिंग लाइफ टाइम वी टेक एवरेज लाइफ कितनी, उसकी एवरेज लाइफ टाइम कितनी. एक्चुअल लाइफ टाइम तो उसकी इन्फिनिटी होगा, पर एवरेज कितनी, तो वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना. एवरेज लाइफ टाइम यानी क्या, तो उसको ऐसे डिफाइन किया गया है, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ अ सब्सटेंस is the time during which, average lifetime is the time during which the activity of the substance becomes the eth part of the initial activity. Okay, यानी कि एक्टिविटी इनिशियल एक्टिविटी का eth पार्ट हो जाए डिवाइड बाई उस टाइम को बोलते हैं एवरेज लाइफ टाइम. तो एवरेज लाइफ टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स eth पार्ट ऑफ द इनिशियल एक्टिविटी, दैट्स कॉल्ड एवरेज लाइफ टाइम. चलो इसका फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं. लेट्स ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर
एवरेज लाइफ टाइम। तो उसके लिए स्टार्टिंग तो वही अपना स्टैंडर्ड है, वी नो दैट, हमें सब कुछ पहले से ही मालूम, क्या आई इज इक्वल टू आई जीरो ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। नाउ यूजिंग आई इक्वल टू आई जीरो बाई ई एट टाइम टी इक्वल टू एट टाइम टी इक्वल टू टाउ। तो टाइम टी इक्वल टू टाउ पे आई इक्वल जीरो बाई ई यूज करते हैं, तो दिस विल बी आई जीरो बाई ई इज इक्वल टू आई जीरो ई रेस टू माइनस लैम्बडा टाउ। आई जीरो कैंसिल हो गया, इन्वर्ट करते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू, ये माइनस साइन चला जाएगा, लैम्बडा टाउ ई इक्वल टू ई रेस टू लैम्बडा टाउ। कंपेयर करें पावर को, सेम बेस जैसे पावर कंपेयर करें, तो कंपेयरिंग पावर और लेट्स से एक्सपोनेंट्स, व्हाट वी गेट इज लैम्बडा टाउ इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर टाउ विल बी इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा। ये आ गया एवरेज लाइफ टाइम का फॉर्मूला, टाउ कम्स आउट टू बी 1 बाय लैम्बडा। एवरेज लाइफ टाइम ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का फॉर्मूला आ गया 1 बाय लैम्बडा। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आपको याद होगा, शायद हमने जब आगे लिया था डिस्कशन रेडियोएक्टिव कांस्टेंट के बारे में, लैम्बडा इज द रेडियोएक्टिव कांस्टेंट, कि लैम्बडा जितना ज्यादा उतना डीएन बाई डी ज्यादा उतनी लाइफ कम, लैम्बडा जितना ज्यादा उतनी लाइफ कम। आ रहा है ना यहाँ पे क्लियर रिलेशन, लैम्बडा जितना ज्यादा उतनी लाइफ कम, लैम्बडा जितना कम उतनी लाइफ ज्यादा। ओके, अच्छा फिर यहाँ पे एक और छोटा टॉपिक बनता है, रिलेशन बिटवीन टाउ एंड टाउ हाफ। नाउ टाउ हाफ इज इक्वल टू 0.693 by lambda, but 1 by lambda is tau, so this will be 0.693 into tau, यानी कि tau half लाइफ टाइम is 0.693 times tau, यानी कि 69.3% of tau, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ tau, यानी कि हाफ लाइफ टाइम इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द एवरेज लाइफ टाइम, एवरेज लाइफ टाइम का 70% ऑलमोस्ट। एंड अगर उल्टा सोचो तो टाउ विल बी इक्वल टू 1/0.693 ऑफ टाउ हाफ, बराबर है। ये 1/0.693 कितना आता है, इट कम्स आउट टू बी 1.44, that comes out to be 1.44 टाउ हाफ, रफली 1.5 टाइम्स ले सकते हैं, बराबर। सो दैट्स रिलेशन बिटवीन टाउ एंड टाउ हाफ। तो ये हो गया एवरेज लाइफ टाइम के बारे में, क्लियर। रेडियोएक्टिविटी पोर्शन का ये जो पार्ट था, एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, हाफ लाइफ टाइम एंड एवरेज लाइफ टाइम, ये तीनों ही पार्ट हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। फॉर्मूला इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। या जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे इसी पे बेस्ड होंगे। क्लियर अबाउट दिस, जस्ट गो थ्रू दिस। हाँ, डिसइंटीग्रेशन तो हो रहा है, यानी कि रेडियोएक्टिव रेडिएशंस आर एमिटेड, अल्फा बीटा और गामा रे। अगर मान लो यहाँ पे हमें क्या दिया, हमने अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं किया कि वेदर अल्फा रेज आर कमिंग और बीटा रेज आर कमिंग एंड ड्यू टू दैट डिसइंटीग्रेशन अकरिंग, यानी यहाँ पे वी हैव नॉट स्टिल स्पेसिफाइड वेदर द डिसइंटीग्रेशन अकर ड्यू टू अल्फा और बीटा। हाँ, आगे के जो फॉर्मूला वो सारे कब यूज होंगे, जब सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स बाय एमिटिंग ओनली अल्फा और ओनली बीटा, वन टाइप के डिसइंटीग्रेशन कर रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों का रेडियोएक्टिव फॉर अ गिवन सब्सटेंस डीके कांस्टेंट फॉर अल्फा एमिशन एंड बीटा एमिशन बोथ आर डिफरेंट, उन दोनों केस में विल बी डिफरेंट, बराबर है। पर अगर मान लो कोई सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स बाय एमिटिंग बोथ अल्फा एंड बीटा, बोथ ऑफ देम, दोनों एमिट करके डिसइंटीग्रेट हो रहा हो, तो उस केस में क्या करें, तो व्हेन बोथ अल्फा एंड बीटा डीके टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ चल रहे हो तो क्या, तो इन दैट केस लैम्बडा टू बी टेकन एज लैम्बडा अल्फा प्लस लैम्बडा बीटा, रिजल्टेंट डीके कांस्टेंट क्या लेने का, लैम्बडा अल्फा प्लस लैम्बडा बीटा, एंड फिर आगे सम सॉल्व करो, रिजल्टेंट ढूंढ लो एंड फिर सॉल्व कर दो, बराबर है। तो इसी में ये रिलेशन बेसिक है कि अगर अल्फा एंड बीटा दोनों से डिसइंटीग्रेशन हो रहा हो तो लैम्बडा इक्वल लैम्बडा अल्फा प्लस लैम्बडा बीटा, द डीके कांस्टेंट रिजल्टेंट डीके कांस्टेंट विल बी of the substance would be addition of the two decay constants। अब यही चीज एवरेज लाइफ टाइम के टर्म्स में लिखना हो तो वी नो दैट एवरेज लाइफ टाइम टाउ इज इक्वल 1 बाय लैम्बडा, सो लैम्बडा विल बी 1 बाय टाउ। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 1 बाय टाउ रिजल्टेंट एवरेज लाइफ टाइम विल बी 1 अपॉन टाउ अल्फा इनवर्स ऑफ एवरेज लाइफ टाइम ड्यू टू अल्फा एमिशन
प्लस इनवर्स ऑफ एवरेज लाइफ टाइम ड्यू टू बीटा एमिशन। ये फॉर्मूला बन गया एवरेज लाइफ टाइम ढूंढने के लिए, रिजल्टेंट। एंड सिमिलरली अगर हाफ लाइफ टाइम ढूंढना हो तो हाफ लाइफ टाइम के लिए क्या फॉर्मूला है, तो टाउ हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्बडा। सो लैम्बडा विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन टाउ हाफ, है ना, अपॉन टाउ हाफ। तो दिस इक्वेशन विल बी 1 अपॉन टाउ हाफ फॉर द रिजल्टेंट will be equal to 1 upon tau half for alpha plus 1 upon half life time for beta। उसी सब्सटेंस की हाफ लाइफ अल्फा के टर्म्स में और बीटा के टर्म्स में, दोनों का सिंपलीफाई हो। तुम बोलोगे यार यहाँ तो 0.6 तब वो तोड़ जाएगा तीनों में, तो फिर ये दो फॉर्मूला उससे बनते हैं। डेटा में नॉर्मली जब ब्रांच डिसइंटीग्रेशन का केस होगा, दोनों एक साथ दिखेंगे, बताए जाएंगे, तो इधर ये दो वैल्यू दी होगी या ये दो वैल्यू दी होगी। अब ये दो वैल्यू दिया तब पर टाउ मिल जाएगा रिजल्टेंट, एंड देन यू कैन इजीली सॉल्व द सम। ये दो दिया है तो टाउ ढूंढने का, उसमें से हाफ लाइफ बनेगा, यू कैन द सेम थिंग। यानी ये दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, इसलिए हाफ लाइफ लो या एवरेज लाइफ टाइम लो, बात सेम ही है। पर बेसिक फॉर्मूला याद रखो तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्लियर अबाउट दिस। ये हो गया ब्रांच डिसइंटीग्रेशन का केस, जिसमें अल्फा एंड बीटा दोनों साइमल्टेनियसली एमिट हो रहे हैं फ्रॉम द सब्सटेंस। ऐसे केस में क्या करने का, वही आ गया। ओके, देख लो।